Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, Science Learners. In this video, we are going to discuss about the numericals of chapter Light Reflection and Refraction. First question we have, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and magnification. Describe what happens to the image as the needle is moved further from the mirror. So let's see what is given. UVR, it is a minus 12 centimeter. It is a convex mirror. In all mirrors, the distance of the object from the mirror is always, we are taking negative according to the sign conventions. Then focal length, we are taking a positive 15 centimeter. Height of the image is 4.5 centimeter. We have to find our magnification. So according to the mirror formula, when we fill values, as we have to find the image distance, then 1 over 15 minus 1 over minus 12 is equal to 1 over 15 plus 1 over 12. After solving by taking LCM, we get V is equal to positive 6.6 centimeter. Then magnification is equal to minus image distance over object distance. That will be equal to माइनस 6.6 ओवर माइनस 12. माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और आफ्टर सॉल्विंग और डिवाइड वी विल गेट 0.55. तो इट मीन्स साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. Next we have, an object of height 5 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of concave lens of focal length 10 centimeter. If the distance of the object from the optical center of the lens is 20 centimeter, determine the position, nature and size of the image formed using this lens formula. So what the given things we have, height of object, height is plus 5 centimeter for a concave lens. U we have minus 20 centimeter, focal length minus 10 centimeter, or V we have to find objective image distance according to lens formula. As we are applying here, fill the values. 1 over V is equal to 1 over minus 10 plus 1 over minus 20. आफ्टर सॉल्विंग विल गेट माइनस 3 over 20. इसको सीधा कर लेंगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद माइनस 20 over 3 डिवाइड करने के बाद माइनस 6.66 और यू कैन राइट 6.7 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनी अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो. देन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंसेज में, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे. हमें इमेज की हाइट चाहिए तो इसमें हम वैल्यूज़ फिल करने के बाद 5 इंटू माइनस 20 over 3 मल्टीप्लाई 1 over माइनस 20 सेंटीमीटर. सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला 5 over 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1.66 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच an object should be placed in front of convex lens of focal length 10 centimeter to obtain a virtual image of double its size. तो गिवन है हमारे पास सिर्फ फोकल लेंथ दी हुई है उन्होंने 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव की आ जाएगी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है. वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, जो मैग्नीफिकेशन दी हुई है डबल इट्स साइज तो हो गया +2. तो m इज इक्वल टू v ओवर यू. तो v ओवर यू विल बी इक्वल टू 2. तो v किसके इक्वल हो गया, 2u के. अब यही वैल्यूज़ हम लेंस फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे. इनको सॉल्व करने के बाद 1 over 2u, v की जगह पे हमने 2u लिख दिया, माइनस 1 over u इज इक्वल टू 1 over 10. इसको सॉल्व करेंगे मीन्स माइनस करेंगे तो माइनस 1 over 2u आ जाएगा इज इक्वल टू 1 over 10. u हमारे पास आया माइनस 5 सेंटीमीटर. अगर रियल इमेज बन रही है तो जो m होगा वो -2 है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी. v ओवर u इज इक्वल टू -2. v किसके इक्वल होगी, -2u के इक्वल. अब माइनस का साइन आ गया. देन सॉफ्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब पहले था यहाँ पे 1 over 2u माइनस 1 over u, तो उसको सॉल्व किया था. अभी हमारे पास -2u है तो इसको एलसीएम लेके साथ सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास -3 over 2u इज इक्वल टू 1 over 10. u हमारे पास गया -15 सेंटीमीटर. तो इसमें क्या होगा, 1/2 ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर. नेक्स्ट है हमारे पास
What is meant by power of lens? Write its SI unit. A student uses a lens of focal length 40 centimeter and another of minus 20 centimeter. Write the nature and power of each lens. Power of lens की definition क्या होगी? Ability of a lens to converge or diverge light rays passing through it. It is the reciprocal of द फोकल लेंथ. एसआई यूनिट इसको हम डायप्टर में मेज़र करते हैं, तो एसआई यूनिट हुई डायप्टर डी. पी इज इक्वल टू 1/f इन डी. अगर पावर हमने पहले लेंस की निकालनी है तो फोकल लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगी? P1 इज इक्वल टू 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो 100/40 हमें मिल गया, प्लस का 2.5 डायप्टर. फॉर सेकेंड लेंस फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स फोकल लेंथ अब नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये कनकेव लेंस हुआ. तो एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू -20/100 मीटर, तो हमें क्या आया? -1/5 मीटर फोकल लेंथ. पावर क्या बन गई हमारी? -5 डायप्टर. नेक्स्ट है, a converging lens forms a real and inverted image of an object at a distance of 100 centimeter from it. Where should an object be placed in front of it lens so that the size of the image is twice the size of the object? Also calculate the power of the lens. तो एज इमेज डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन डबल और ट्वाइस द साइज. तो जो मैग्नीफिकेशन है वो v/u के इक्वल होती है, तो हमने इसको फिल किया दैट v/2 इज इक्वल टू 100/2. देन इट बिकम्स 50 सेंटीमीटर. मैग्नीफिकेशन आई हमारी 50 सेंटीमीटर. लेंस फार्मूला लगाएंगे, मीन्स ये हमारे पास आई है u के इक्वल. ये गलत लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू v/u. 2 इज इक्वल टू 100/2, तो हमारे पास जो v है u आई हमारे पास 50 सेंटीमीटर. इसमें हम वैल्यूज़ फिल करेंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला में. तो जैसे u हमारे पास 50 आई थी, तो हमने इसमें वैल्यू फिल की -50 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करेंगे जब, तो वी विल गेट 3/100. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी विल गेट 3/100. फोकल लेंथ कितनी होगी देन हमारी? इसको सॉल्व करने के बाद आया हमारा 1/3 मीटर. सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, तो पावर क्या होती है? पावर इसको हो गया हमारा 1/f दैट इज इक्वल टू +3 डायप्टर. नेक्स्ट है, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर. कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 48 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. तो जैसे कि हमें फोकल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, वी हमारे पास है 48 सेंटीमीटर, ये दोनों पॉजिटिव लेंगे, और यू हमें पता करना है. लेंस फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला में वैल्यूज़ फिल करेंगे. 1/48 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/12. 1/u इज इक्वल टू 1/48 माइनस 1/12. यू हमारे पास आ गई -16 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by convex lens of focal length 20 centimeter when the object is placed 30 centimeter away from the lens. तो फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर है, v हमें पता करना है. लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद v हमारे पास आया 60 सेंटीमीटर, f था 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर. u क्या हो गया 30 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स object is placed between f and 2f. Image will be beyond the 2f and enlarged size will be there. So this is the ray diagram for this question. अगर हमें अपने स्केल से बनाना हो, तो जैसे हमारा स्केल सेंटीमीटर्स में दिया होता है, तो आप उसको जैसे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप अपने स्केल पे उसको 2 सेंटीमीटर देख कर सकते हैं. 30 सेंटीमीटर आया है तो आप 3 ले सकते हैं, 40 आया है तो 4 ले सकते हैं, अगर 15 आया तो आप उसको 1.5 ले सकते हो. अगर आप अपने स्केल के साथ ऐसे मेज़र करके ड्रॉ करोगे रे डायग्राम प्रॉपर, तो आपकी एग्जैक्ट रे डायग्राम बन जाएगी. नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज. ड्रॉ रे डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज.
तो u हमारे पास दिया हुआ है -8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे। 1/v माइनस 1/-8 इज इक्वल टू 1/10। 1/v हमारे पास आया 1/10 माइनस 1/8। इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके तो आया -1/40। तो इट मीन्स जो इमेज डिस्टेंस है वो है -40 सेंटीमीटर। तो इमेज किस तरह की बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। This is the ray diagram for this question. Next है, a 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. हाइट दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस पता करना है। फोकल लेंथ दी हुई है +20 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज ऑल्सो वी हैव टू फाइंड। लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज -1/-15 इज इक्वल टू 1/20। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3 - 4/60 दैट इज इक्वल टू -1/60। तो हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आया -60 सेंटीमीटर। तो इमेज बनी हमारी वर्चुअल और इरेक्ट। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे हाइट पता करने के लिए। हाइट ऑफ इमेज ओवर 4 इज इक्वल टू -60/-15। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया हाइट 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, state the relation between object distance, image distance and focal length of a concave or convex mirror. A concave mirror produces 2 times magnified real image of an object at 10 centimeter from it. Find the position of the image. तो what will be the relation? It becomes convex mirror formula लग जाएगा हमारा 1/v plus 1/u is equal to 1/f। मिरर फॉर्मूला लगा दिया। अब मैग्नीफिकेशन दी हुई है -2। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर। इसमें अब वैल्यू फिल करेंगे। वी को फाइंड आउट करेंगे। वी आ गया हमारे पास -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आता होता है कई बार, द मैग्नीफिकेशन, बी पार्ट रीड कर रही हूँ। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर इज m इज इक्वल टू +4। राइट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज गिवन बाय दिस स्टेटमेंट। अब मैग्नीफिकेशन दी हुई है तो हमें स्टेटमेंट से क्या क्या पता चल रहा है इमेज के बारे में वो हमें बताना है। तो अगर मैग्नीफिकेशन +4 है तो ये कनकेव मिरर है। इसका मतलब है वर्चुअल एंड लार्ज इमेज बन रही है। वर्चुअल है तो ऑब्वियसली इट विल बिहाइंड द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ दी हुई है -30 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन है -3। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है। तो रियल इमेज के लिए क्या होगा? मैग्नीफिकेशन -v/u दैट इज़ -3 दी हुई है। v क्या हो जाएगा? 3u। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज़ फिल करेंगे। अब v की जगह पे हम 3u लगाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद u आ गया हमारे पास -40 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर मिरर से आगे होना चाहिए जो हमें रियल इन्वर्टेड इमेज मिल जाए कनकेव मिरर से। अगर वर्चुअल इमेज है तो ये हो गया -v/u, ये +3 हो गया और v आ गया हमारे पास -3u। मिरर फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। वैल्यूज़ फिल करने के बाद 1/u प्लस 1/-3u इज इक्वल टू 1/-30। 2/3u इज इक्वल टू -1/30। तो u आ गया हमारे पास -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी कनकेव मिरर से। नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यू दी हुई है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर, वी इज इक्वल टू फाइंड करना है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो इसका भी आपको हाफ मार्क मिलेगा और अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। लेंस फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला के भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर इसको हम वैल्यूज़ फिल करेंगे, सॉल्व करेंगे।
इसका भी आपको हाफ मार्क मिलेगा और आंसर के हाफ मार्क मिलेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता, एटलीस्ट गिवन वैल्यूज लिखकर हम हाफ मार्क तो ले ही सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आया वो 60 सेंटीमीटर आया। तो नेचर क्या हुई, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। मैग्नीफिकेशन m इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v ओवर u। तो हाइट ऑफ हाई वैल्यूज़ फिल करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया -10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज केम्स -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यू दिया -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हम +18 सेंटीमीटर, वी पता करना है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ फिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वी आ गया हमारे पास प्लस का 54 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें जो जो दिया हुआ है वैल्यूज़ फिल करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया -8। तो माइनस का साइन इंडिकेट क्या है, द इमेज इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हाइट 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो इमेज डिस्टेंस क्या आया, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे। 1/v माइनस 1/-25 इज इक्वल टू 1/10। 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 5 माइनस 2/50 इज इक्वल टू 3/50। तो इमेज डिस्टेंस आया 50/3 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 16.7 सेंटीमीटर। सॉल्व करने के बाद अब साइज़ निकाल लेंगे इमेज का, इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे। ये आपको बच्चे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे फिर भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया -3.3 सेंटीमीटर। इमेज क्या है, रियल है, स्मॉल इन साइज़, इन्वर्टेड और 16.7 लेंस से इतने डिस्टेंस पे ये बनेगी। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्नीफिकेशन। तो हमारे पास यू दी हुई है -15 सेंटीमीटर, आर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है r/2, दैट इज़ उसको कर लेंगे हम 30 सेंटीमीटर। तो वी हो गया हमारा, फाइंड आउट करना है और एम फाइंड आउट करना है। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ फिल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/30 + 1/15 इज इक्वल टू 3/30। तो इमेज डिस्टेंस आया हमारा 10 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी, -v/u, -10/-15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3। A point object is placed at distance of 12 cm from a convex lens on its principal axis. Its image is formed on the other side of the lens at a distance of 18 cm from the lens. Find the focal length of the lens. It is the image magnified. Justify your answer. तो u दी हुई है हमें -12 सेंटीमीटर, v है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पता करनी है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 1/18 माइनस 1/-12 हमें क्या मिला, 1/18 + 1/12, 2 + 3/36 एलसीएम लेने के बाद दैट इज़ 5/36। फोकल लेंथ आई हमारी 36/5 इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन v/u 18/-12 दैट इज़ -1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंसेज हैं, पावर है +2d एंड -4d। नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -4d। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस। तो पावर है हमारे पास फर्स्ट दी हुई है +2d, इसकी फोकल लेंथ होएगी 1/2m मीटर, तो फोकल लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। तो लेंस क्या हुआ हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। पावर 2 दी हुई है -4d, आंसर हमारा आया नेगेटिव में -25 मीन्स 1/-4 दैट इज़ -25 सेंटीमीटर। तो लेंस हुआ हमारा कॉन्केव लेंस। फॉर द लेंस ऑफ पावर दिया हुआ दूसरा -4d, फोकल लेंथ हुई -20 सेंटीमीटर, यू हमारे पास -100 सेंटीमीटर, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे।
1/v माइनस 1/-100 इज इक्वल टू 1/-25। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वी आई -20 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखकर खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, उसके बाद अपना आंसर मैच कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा आपको कितने आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और